हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। Dear students, we have already done in exercise 5.2. Exercise 5.2 we have already done, and today we'll discuss exercise 5.3. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि 5.3 एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के n पदों का योगफल। How to calculate n terms, how to calculate the sum of n terms of an AP। देखिए, सपोज कि आपको एक AP गिवन है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d and so on, and this is nth term of this AP. Okay, and we have to find out the sum of n terms of this AP. So what we will do, we can apply the formula like s equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula to calculate sum of n terms of an AP, and it is represented like Sn. Okay, also we can apply another formula like n by 2 2a। तो अगर 2a को हम ऐसे लिख लें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 2a को हमने ब्रेक कर दिया a प्लस a। अब you know very well, everybody knows that this is the nth term of an AP। ये बच्चों क्या है? This is nth term of an AP, or we can say last term of an AP. So what we can write? We can write a plus in place of L. So we have two formulas to calculate sum of n terms of an AP. देखिए, first formula is sum of n terms Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, where you can write n number of terms, a first term, and d is common difference. Okay, here also you can watch like n means number of terms, a यानी फर्स्ट टर्म and L is last term. So we have two formulas to find out sum of n terms. Dear student, this formula can be applied when the first and last term is given and number of terms are given, and this formula can be applied when first term, common difference and number of terms are given. It means that कि both the formulas are very important to calculate sum of n terms of an AP. ओके बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और देन आफ्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम एग्जाम्पल्स लाइक एग्जाम्पल 11। एक दो क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के, देन आफ्टर फर्दर वी प्रोसीड टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इन देखिए व्हाट वी हैव टू डू इन एग्जाम्पल 11। वी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। एक AP हमें गिवन है
देखिए AP is given 8, 3, -2 and so on. This AP is given, and what we have to find out? We have to find out sum of first 22 terms. Sum of first 22 terms means S22 we have to calculate. So dear students, in this AP first term is 8. Common difference A2 minus A1, 3 minus 8 means -5. Okay, and we know the formula of sum of n terms like n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula to calculate sum of n terms. So what we can do, sorry, now we have to find out S22. So very clearly we are watching that n equal to 22, n equal to 22, क्योंकि हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है. ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8 n 22 माइनस 1 d माइनस 5. ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी बेटा. 2 से इसको काट देंगे 11, तो 11 इंटू 2 8 जा 16 प्लस 21, 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 दैट इज़ 21 इंटू माइनस 5 एंड 11 इंटू 16 प्लस माइनस माइनस 21 5 जा 105 एंड 11 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 15 में से 6 को माइनस करेंगे 9, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 माइनस का 89 एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस 89 बाई 11 तो 11 9 जा 99, 9 कैरी एंड 11 8 जा 88, 88 88 और 9 97 और प्लस माइनस माइनस तो S22. तो डियर स्टूडेंट दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. मतलब हमसे पूछा था कि इस AP का S22 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालिए. तो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड S22 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी इस AP के पहले 22 पदों का योगफल हमने कैलकुलेट किया है ना. बस ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP निकालना होता है, ऑलवेज वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. In we have actually two formulas when the first term and last term is given and the first term and common difference and number of terms are given. Okay, so minus 979. Also we can write our final answer, hence the required sum of first 22 terms is minus 979. This is our answer. समझ में आया प्यारे बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. एग्जाम्पल 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पेज 109. देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read the question very carefully, because when we study the question we definitely understood that what is given and what we have to find out. Okay बच्चों, देखिए, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050, हमें AP के फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 1050 गिवन है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10 और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है. फाइंड द 20th टर्म. तो 20th टर्म का मतलब होता है हमें इसका 20वां पद निकालना है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन थिंग्स. क्या क्या गिवन है देखिए. सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, इट मीन्स दैट कि हमें S14 गिवन है 1050. First term is also given, so A is equal to 10
Okay, to find, and we have to find out A20. डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि A20 निकालने का मतलब है कि आपको A20 निकालना है, और A20 का मीनिंग है आपको A+19D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A+19D कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज़ ऑलरेडी गिवन A = 10, बट कॉमन डिफरेंस हमें गिवन नहीं है। बट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, S14 यानी सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। किसी एपी के फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हमें गिवन है। हम इसको अप्लाई करते हैं। हमें गिवन है S14 = 1050। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ Sn। सो Sn = n/2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. Okay, what you can do, in place of n, in place of this n, and this n, you can put 14. So S14 = 14/2 into 2 multiply a is already given 10 plus n means 14 minus 1 into d. We don't know. We have to calculate actually. S14 is given as definitely 1050. 2 7 ja 14 and 2 10 ja 20 and 14 minus 1, that is 13. Okay beta, तो you can also do like that. 1050 divided by 7, ये जो 7 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 बन जा 7, 3 बचा 35 एंड 7 5 जा 35, 0 का 0, एंड ये आ गया हमारे पास 20 + 13D। सो 150 = 20 + 13D, and from here you can transpose this 20, so this will be -20 = 13D, and 150 minus 20, it is 130 = 13D, and from here we can calculate the value of D. So D is equal to 130 upon 13. 13 10 ja 130, so D is equal to 10. So dear students, now we have got common difference. अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, हमें फर्स्ट टर्म पहले से पता है। अब वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट A20 यानी 20th टर्म ऑफ दैट AP20। सो सिंपली A20 मीन्स A+19D। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। आप जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 into D। अब यहाँ पे जो भी टर्म होता है, जो D का कोफिशिएंट होता है वो 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 - 1 यानी कि 19। तो A, सो A, वैल्यू ऑफ A इज़ ऑलरेडी गिवन 10 + 19 into D, वी हैव कैलकुलेटेड 10। So 10 + 19 10s are 190, and 190 and 10, so that is 200. A20 is 200. So प्यारे बच्चों, this was very important question. और ये जो फाइनल आंसर होते हैं, गिवन, टू फाइंड, हैंस, ये सब लिखा करो बेटा, है ना। जो वैल्यूएटर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है जब हम लिखते हैं कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। जो हमने फाइंड आउट किया फिर उसको फाइनली हम लिख देते हैं कि हैंस दिस हैज़ बीन फाइंड आउट। तो हैंस द रिक्वायर्ड 20th टर्म इज़ 200। अंडरस्टूड बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं, एंड लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
on page 112 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मीन्स AP is given and we have to find out the sum. Okay, so करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम बताते हैं आपको 1-2 क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ही देखिए। 2, 7, 12 and so on to 10 terms. 2 to 10 terms. डियर स्टूडेंट्स, हमें ये AP गिवन है और इस AP के 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इट इज़ वेरी इजी, है ना। A इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 लाइक 7 माइनस 2 मीन्स 5 नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो n इक्वल टू 10 दिस इज़ गिवन। So what we have to find out? We have to find out S10 we have to find out. Okay, तो हम क्या करेंगे? Simply we use the formula of sum of n terms. तो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula to calculate sum of first n terms of an AP. Here value of n is given 10. तो S10 is equal to 10 by 2 into 2 multiply the value of A is 2 plus n means 10 minus 1 into d means 5. 2 5 ja 10, so this will be 5. 2 2 ja 4 plus 10 minus 1 9, 9 5 ja 45 and 5 multiply 45 plus 4 yani 49. 9 5 ja 45 and 4 carry 5 4 ja 20, 24. S10 इक्वल टू 245. इट इज़ वेरी इजी, है ना। सो हम लिख भी सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 10 terms is 245. सिंपल। ओके, अंडरस्टूड बच्चों? यू आर गेटिंग द क्वेश्चन ना? समझ में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा? ओके, चलिए तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बता देते हैं। लाइकवाइज फोर्थ वाला बता देते हैं। तो फोर्थ में लिखा है 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 and so on to 11 terms. डियर स्टूडेंट्स, देखिए कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है ना। इट इज़ नॉट अ सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एक AP गिवन है और इसके फर्स्ट 11 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो A इज़ इक्वल टू 1 by 15, D A2 माइनस A1, A2 यानी कि सेकेंड टर्म, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। LCM ले लीजिए। तो 12 एंड 15 का LCM कितना होगा? 12 यानी 3 into 4 एंड 15 3 into 5। सो डेफिनेटली कितना आ गया? 5 4 जा 20, 3 जा 60। ये भी एक तरीका होता है LCM कैलकुलेट करने का। एक तरीका ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 15 का 15, 2 से करेंगे 2 3 जा 6 15 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड अगेन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। सो 12 5 जा 60 एंड 5 1 जा 5, 15 4 जा 60 एंड 4 1 जा 4 and this will be 1 by 60. So what we have calculated? We have calculated D equal to 1 by 60.
Okay, and already value of n is given, n equal to 11. Value of n is already given, because what we have to do, we have to find out the sum of 11 terms. Apply the formula of sum of n terms. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, so now what we can do, putting the values in the formula. तो s n की जगह पे क्या रखेंगे, 11, and 11 by 2 into 2 multiply a means 1 by 15, okay, plus n means 11 minus 1, and d means 1 by 60. सो अब क्या कर सकते हैं, देखिए 11 बाई 2 इंटू 2 बन जा 2 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 बन जा 10 बाय 60. ओके, सो काट सकते हैं आप एक जीरो से एक जीरो को. सो दिस विल बी 11 बाई 2 एंड टेकिंग एलसीएम ऑफ 15 एंड 6. तो 15 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो आप ले सकते हैं, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 3 से काटिए, 3 5 जा 15 एंड 5 से काटिए. तो 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30. ओके, देखिए 15 2 जा 30, 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 6 5 जा 30 एंड 5 1 जा 5. तो कितना आया, 11 बाई 2 मल्टीप्लाई 4 और 5 9, तो 9 बाई 30 एंड 11 9 जा 99 एंड 32 जा 60. ओके, हम इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. तो कितना आ गया बच्चों, 33 बाई 20, 33 बाई 20. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore S11 इज इक्वल टू 30 बाई 20. हमें कैलकुलेट करना था S11. S11 आप समझ गए होंगे, sum of first 11 terms. Hence the required sum of first 11 terms equal to 33 by 20. ओके बच्चों, समझ में आया? सो दिस वॉज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द सम्स गिवन बिलो. तो हेयर ऑल्सो एपीज आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम. ओके, तो एक क्वेश्चन बताएंगे आपको. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, AP is given 7 plus 10 and half and 14 plus dot dot dot. ये डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो ऑन प्लस 84. ओके, look at the board very carefully and try to understand the question, dear students. देखिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें भी हमें AP गिवन थी और उसमें भी हमने फर्स्ट एंड टर्म्स का सम कैलकुलेट किया. दिस इज़ ऑल्सो एन AP, ये भी एक AP है, बट दोनों में डिफरेंस है. इसके पहले जो AP हमें गिवन थी उसमें हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं था, but in this question last term is given. Okay, we have to find out the sum. ठीक है, हमें सम निकालना है. ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इट इज़ वेरी इजी. इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, 7. अच्छा, इस AP का लास्ट टर्म कितना है, 84. ओके, एंड हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखिए हमें पता है कि फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 10 इंटू हाफ है, थर्ड टर्म 14 है, ऐसे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और ये लास्ट टर्म है.
ठीक है। बट हमें ये तो पता ही नहीं है कि ये लास्ट टर्म तो है, लेकिन ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, या हम ये कह सकते हैं कि इस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं, दैट AP कंटेन्स हाउ मैनी टर्म्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। तो a2 माइनस a1, a2 यानी सेकेंड टर्म, 10 इंटू हाफ माइनस का 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 टू जा 20 एंड 1 21/2 माइनस का 7। एंड आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 21 को 2 से काटेंगे तो 10.5 माइनस 7, और 10.5 में से 7 को माइनस करेंगे 3.5। सो हम कह सकते हैं कि D कितना आ गया हमारा 3.5। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, L = A + n - 1 × D। और ये हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू ऑफ n निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ n निकालने के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे ये भी पूछ सकते हैं, सर इसमें फर्स्ट टर्म गिवन था, लास्ट टर्म गिवन था, तो वाई वी आर नॉट अप्लाइंग द डायरेक्ट फार्मूला ऑफ Sn = n/2 × A + L। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को अप्लाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे क्या रखोगे। हमें यही नहीं पता कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, तो हम कितने टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले n तो पता होना चाहिए। तो n कैलकुलेट करने के लिए हमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। तो देखिए, L 84, फर्स्ट टर्म 7, n we don't know, D we know 3.5। ओके, इस 7 को ट्रांसफ़र कीजिए तो 84 - 7 = n - 1 × 3.5, एंड 84 - 7, तो दैट विल बी 77 = n - 1 × 3.5। ओके, अब क्या करें, जब 77 को हम 3.5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा n - 1, और हम एक इस पॉइंट को रिमूव करके एक जीरो को बढ़ा सकते हैं, है ना, और 5 से इसको काट सकते हैं, तो 5 × 7 = 35, एंड 5 बन जा 5, 2 बचा 27 हो गया, 5 × 5 = 25, और 5 × 4 = 20। एंड अगेन हम जब इसको 7 से काटेंगे तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14। तो कितना आया, 22 = n - 1, and when you will transpose this -1, so this will be plus, so 22 + 1 = n, और n = 23, n = 23। तो बच्चों, हमें अब ये पता चल गया कि ये जो AP हमें दे रखी है, इसका जो लास्ट टर्म 84 है, तो इसमें 23 टर्म्स हैं, मीन्स दिस AP कंटेन 23 टर्म्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S23। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, S23। तो S23 हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम S23 अब निकाल सकते हैं, Sn = n/2 × A + L। हम इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाला। तो अब तो हमें प्रॉब्लम है नहीं, तो पुटिंग द वैल्यू, तो Sn की जगह पे कितना रखेंगे, 23 = 23/2 × A यानी फर्स्ट टर्म दैट इज़ 7, एंड लास्ट टर्म इज़ गिवन 84। सो दिस विल बी 23/2 × 84 + 7, तो दैट इज़ 91। सो सिंपली हम मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो 91 × 23, तो दिस विल बी 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, एंड 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, और ये आ गया 2093। तो 2093 इज डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपली 2 × 1 = 2, 0, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। सेकंड का फर्स्ट, तो ये है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने पॉइंट में आंसर नहीं दिया, उन्होंने आंसर दिया है हमें मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है उन्होंने 1046 × 1/2।
1046 इंटू 1/2। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वेदर जो आंसर गिवन है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12 का 2 कैरी 1 4 2 8 और 1 9 एंड दैट ऑल 2022 + 1 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो S23, so this is our answer. S23 is equal to 1046 into 1/2. Okay, so it is very simple question. Hence the required sum is 1046 into 1/2. आंसर समझ में आया प्यारे बच्चों? दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन आई थिंक. रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 3 so many questions are given. Question number 3 has actually 10 questions. Some question we will do for you definitely and remaining you will do. देखिए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस गिवन है इसमें. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए. गिवन दैट a equal to 5, d equal to 3, an equal to 50, and what we have to find? n and sn. n and sn. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है. आप लिख सकते हैं इस चीज़ को. काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट जाता है. जो वैल्यूएटर होते हैं उनकी नज़रों में वो देखते हैं हर चीज़ को माइन्यूटली कि बच्चे ने किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, वी आर नॉट स्टडिंग कॉम्पिटिटिव, वी आर स्टडिंग एकेडमिक. इन एकेडमिक्स एवरीथिंग वी हैव टू शो. हमें मिनिमाइज़ नहीं करना है चीज़ों को, हमें मैक्सिमाइज़ करना है. अंडरस्टूड? तो हर चीज़ को लिखना ज़रूरी है. अब देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, nth टर्म गिवन है, n की वैल्यू और सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है. हम क्या करें? हमारे पास ऑप्शन है कि हम सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करें. तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है nth टर्म का a + n - 1 इंटू डी. इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं. nth टर्म इज़ गिवन 50, a हमें पता है 5, n डोंट नो, d इज़ 3. 50 माइनस का 5 इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया. n - 1 इंटू 3, दिस विल बी 45 इक्वल टू n - 1 इंटू 3. एंड जब आप यहाँ से n - 1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जो 3 है वो इसके अपॉन में जाएगा. 45/3 दैट इज़ 15. सो द वैल्यू ऑफ n - 1 इक्वल टू 15. सो n इक्वल टू 15 + 1 दैट इज़ 16. सो n इक्वल टू 16. तो बच्चों आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं? 16. सो n इक्वल टू 16. वन आंसर वी हैव गॉट. ओके, अब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट Sn. सो अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ Sn, n/2 इंटू a + l. हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें l का मतलब होता है nth टर्म, और nth टर्म हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. आप जानते हैं कि जो लास्ट टर्म होता है उसको हम nth टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स दैट कि nth टर्म एंड लास्ट टर्म बोथ आर कंसीडर एज अ सेम थिंग. तो देखिए n ऑलरेडी कैलकुलेटेड 16. सो S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म, तो डेट इज़ 5 प्लस फर्स्ट लास्ट टर्म यानी कि 50. Okay, so this will be 2 1 ja 2, 2 8 ja 16. So 8 multiply and 50 plus 5 that is 55, and 8 5 ja 40, 4 carry, 8 5 ja 40 and 4 44.
सो S16 इज इक्वल टू 440. कितना आ गया? 440. टू थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली. S16 इक्वल टू 440. Okay, so this is the value of n, then this is the value of S16. So we can write, hence the required value of n is 16 and S16 equal to 440. Answer. Understood students? So this was first part of question number 3. तो सिंपल क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी जो 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, डोंट वरी. हर क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है. हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है. अब ये डिपेंड करता है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ लेते हैं या नहीं समझ पाते हैं. क्वेश्चन की फीलिंग्स को जिसने समझ लिया वो क्वेश्चन को बना लेगा, और जिसने क्वेश्चंस की फीलिंग्स को नहीं समझा वो क्वेश्चन को रट लेगा लेकिन कर नहीं सकता. तो ऑलवेज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ एवरी क्वेश्चन, बिकॉज एवरी क्वेश्चंस हैज़ सम फीलिंग्स. ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है. चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए. गिवन A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, S10 इक्वल टू 125, and to find what we have to find out, D and A10. Okay, third term is given and sum of first 10 terms is given. एंड डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म. सो देखिए कैसे करेंगे. A3 इज़ गिवन 15, तो वी नो कि A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 15. दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट. ओके, दिस वाज गिवन, ये हमें दिया गया था तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं गिवन. अच्छा, ऑल्सो S10 इज़ गिवन, S10 इज़ इक्वल टू 125, ये भी हमें गिवन है तो इसका भी यूज़ करते हैं. तो S10 का फॉर्मूला लगाते हैं. S10 का फॉर्मूला क्या होगा? n/2. तो n की जगह पर 10 लिखिए, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 125. एक बात दोबारा से देखें, हमने क्या कर दिया. देखिए कुछ नहीं है, ये क्या है? S10 है और हम सिंपली जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे S10 है तो डेफिनेटली आप n की जगह पे कितना रखोगे? 10. तो यहाँ भी आप कितना रखोगे? 10. यहाँ भी आप कितना रखोगे? 10. तो वही तो हमने किया है, चेक करो. S10 इज़ इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, बस हमने क्या कर दिया, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, यानी कि हमने फॉर्मूले में वैल्यू पटअप कर दी. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d इक्वल टू 125 और 2a प्लस 9d इक्वल टू, ये 5 देखिए मल्टीप्लाई में 5 है तो ये अपॉन में जाएगा, तो 125 अपॉन 5 एंड 5 2 जा 10 5 5 जा 25. सो दिस विल बी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25. इक्वेशन सेकेंड. तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 15 एंड 2a प्लस 9d इक्वल टू 25.
तो वेरी इजी, हमने सीखा है चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, ठीक है। वहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते थे हमारे x एंड y, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं हमारे a एंड d, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब आप गौर से देखो कि अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम एडिंग कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम अगर a के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो करो। तो इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है और हमें इसको 2 से इंटू करना है, तो करो 2a 4d एंड 15 2 ज़ा 30, ठीक है। और अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, और इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसमें से क्या कर देते हैं कि इसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्टिंग में सभी जानते हैं कि साइन चेंज होते हैं, 2a से 2a को काट दीजिए, 4d में से 9d को माइनस कीजिए, तो माइनस का 5d, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इस चीज़ को ऊपर लिखता हूँ। तो 4d में से 9d को माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस का 5d, और 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो दिस इज़ 5। ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ d इज़ 5 अपॉन -5, दैट इज़ -1, d इक्वल टू -1। कॉमन डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में कितना आ गया, -1। अब हमें क्या और कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है a10, लेकिन a10 निकालने के लिए देखो a10 का मतलब है 10th टर्म, और a10 का मीनिंग हमें पता है a प्लस 9d, यानी हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो ये है d इक्वल टू -1, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म देखिए कैसे निकालें। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस d की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं या सेकंड में रखते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू 15। सो a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 15 एंड a प्लस माइनस 2 इक्वल टू 15 एंड देयरफॉर a इक्वल टू 15 प्लस 2 यानी कि 17। a की वैल्यू कितनी आ गई, 17, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 आ गया बच्चों, और d इक्वल टू हमारे पास -1 आ गया। a10 हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब, तो a10 यानी कि 10th टर्म ऑफ दिस AP विल बी a प्लस 9d। a हमारे पास में है 17 और 9 इंटू डी की वैल्यू है -1, सो 17 प्लस माइनस 9 बन जा 9, 17 माइनस 9 8, सो a10। तो हमें केवल 2 चीज़ें पूछी थी, a10 यानी कि 10th टर्म ऑफ एन AP and common difference, both we have calculated, so only thing is that we have to write the final answer. Hence the required value of D is -1 and a10 equal to 8. Answer. समझ में आया प्यारे बच्चों? सो दिस वाज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने फोर्थ पार्ट कराया आपको थर्ड का, अब हम आपको कराते हैं सेवेंथ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का
7th पार्ट देखिए गिवन. तो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? a इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8, nth टर्म इक्वल टू 62, nth टर्म इक्वल टू 62, Sn इक्वल टू 210, Sn इक्वल टू 210 and we have to find out n and d. तो बच्चों इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल टू 8, nth टर्म गिवन है 62, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 210 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए nth टर्म इज गिवन. ओके, सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो अब क्या करें? nth टर्म 62 इज गिवन, a 8, n डोंट नो, कॉमन डिफरेंस ऑल्सो वी डोंट नो, है ना. कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं पता. सो दिस विल बी ट्रांसपोजिंग दिस 8. तो 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी एंड 62 माइनस 8 तो 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. तो सिंपली हम आगे इसमें कुछ कर नहीं सकते तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. क्या n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 इक्वेशन फर्स्ट. क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी हमारे लिए अननोन है, डी भी कैलकुलेट करना है हमको, है ना. ओके, अब हम सेकंड रिलेशन की बात करते हैं. सेकंड रिलेशन हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू 2a प्लस. अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पे एक बेनिफिट है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला. क्यों? क्योंकि हमें nth टर्म गिवन है. तो हमने आपको बताया है कि जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, nth टर्म बोलिए या लास्ट टर्म बोलिए, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो अब क्या करें? Sn इज़ गिवन 210, n वी डोंट नो, फर्स्ट टर्म हमें पता है 8 एंड nth टर्म ऑल्सो वी नो 62. ओके, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 210 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 420 n इंटू और 62 और 8 कितना हुआ? 70. और फ्रॉम हेयर n द वैल्यू ऑफ n विल बी 420 अपॉन 70. 0 से 0 काट दीजिए, 7 6 12, 7 6 42. सो n इक्वल टू 6. n इक्वल टू 6. सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड? वी हैव कैलकुलेटेड n इक्वल टू 6. यानी हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं इसमें. तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें 6 हैं, तो n की वैल्यू हमारी 6 आ गई. हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं. हम लिखते हैं y इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या हो जाएगा? देखिए n यानी 6, तो 6 माइनस 1 हम इसमें वैल्यू पुटअप कर रहे हैं. ओके, तो चलो मैं लिख देता हूँ पहले फर्स्ट इक्वेशन को. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54. अब क्या करें? अब देखिए n की जगह हमने 6 रखा, 6 माइनस 1 इंटू डी. तो डी तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना है ना, इक्वल टू 54 एंड 6 माइनस 1 5. तो 5d इक्वल टू 54 एंड देयरफॉर d इक्वल टू 54 अपॉन 5. अच्छा, एक बार देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं. 210 n/2 a प्लस 62 70 हो गया, 210 420 हो गया, और 62 और 8 70 हो गया. 0 से 0 काटा, 7 6 जा 42, n की वैल्यू 6 आ गई. ओके, 6 आ गई. तो हमने n की जगह पे 6 रखा, 6 में 5d इक्वल टू 54
ओके, एंड डी इक्वल टू 54.5 और सिंपली, तो यही हमारा आंसर होगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट हैं हमारे दोनों आंसर। चलिए, तो यानी n इक्वल टू 6 भी हमारा करेक्ट आंसर है और d इक्वल टू 54/5 भी हमारा करेक्ट आंसर है। ये हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n is 6 and d is 54/5 आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। तो हमने आपको 5.3 के 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, 2 क्वेश्चन एग्जांपल्स के कराए। इसमें हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ किया। रिमेनिंग क्वेश्चंस we will do in next video. Okay, if you have any doubt, any problem in any question, you must write in comment box. I will definitely solve your problem as soon as possible. Thank you so much.